Hi, good evening, my dear friends. Today is our day 2 of CAT 2025 aspirant series. We are going to start with our ratio and proportion chapter. Today we are going to do 10 most important questions from ratios which are closely related to the CAT. We are not going to do basic questions. Basic questions we have done in first class. Now we are not so advanced level, but we are going to do some questions which are closely related to the CAT. We, as classes will go, we will keep on increasing our level of questions, and we will going to have a last past year question answers also at the end of the ratio proportion chapter, or every chapter we have this kind of scenario कि we will go in first or second class we will be going to do basics, and then we will start increasing our level, and at the end of and the end classes we are going to do past year questions of this chapter. So today we are going to start with our question number 16. Last class we left with 15, and now we are going to start with question number 16. As my target is to give at least 10 to 15 questions every day, so that I can upload 2000 to 3000 question at the end of the November, when the CAT examination is going to held on 30th of November. So my target is to upload at least 2000 to 3000 questions, so that student can get help from these videos. They do not need any other study material to revise their stuff. So you can do revise your stuff, and you can learn new things from my what I am learning right now. I am doing these issues, and any topic which I am doing, I'm searching out the most important stuff, and I'm doing it for my CAT aspirant series. I'm doing it for my study, so you can say कि हाँ it is important because I'm also doing for my CAT preparation. So let's start our today's video. Our first question is, if A by, I guess this is not a feasible here. I should not write at here. First question is question number 16. If A by B plus C is equals to B by C plus A is equals to C by A plus B, then which is correct? You have different kind of options for this. So there is a property in ratios and law. If any time you find this condition, if A by B plus C is equals to B by C plus A, and C by A plus B, then it means it's a property, then A is equals to B is equals to C. But we have to know कि A, B, C are greater than 1, greater than 0, sorry. If A equals to B equal to C, then what's the value? So we can put it here, A by B plus C. So we can put it A plus A, which is equals to A by 2A, which get cancelled, is equals to 1 by 2. The first value we can get it here. So if its value is less than 0, then there will be different conditions. So let's suppose it's equals to x. So A will be, I'm starting here, A will be B plus C into x. Same, B is equals to C plus A into x, and C is equals to A plus B into x. Now we can add this stuff, A plus B plus C. When we add this, put A plus B plus C on one side, these A, B and C on one side, and this, take x common here, B plus C will left. Taking x as common, C plus A will left. Taking x as common, A plus B will left. As you can see, there are two C's, two B, two A. So we can get 2 common here. Is equals to A plus B plus C. Here we have A plus B plus C.
Now don't get hurry, don't cancel it out. If we cancel it out, we can get the value of x is same as 1 by 2. So we got to same here. So we don't need to cancel it out. So cancel करने की जगह हम इनको एक साइड पे ले आते हैं. If we get it on one side, so it will be ये इक्वल हो गया. तो I am doing this कि ये हो जाएगा माइनस एंड दिस इज इक्वल्स टू 0. Take common a plus b plus c, we can take it common, and 1 minus 2x is equals to 0. So now either this is equals to 0, either this is equals to 0. तो ये इसकी कंडीशन 0 हो गई ना. दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं और उसका वैल्यू 0 आ रही है, तो मतलब कि उसमें से एक जो है वो 0 है. तो we will going to put these things as equals to 0. And 1 minus 2x is equals to 0. ये हमारी दो कंडीशंस हैं. इसमें हमारे x की वैल्यू निकल जाएगी 1 by 2, which we have proved already. So from here we can get a is equals to minus b plus c. So from here we are getting value of a is equals to minus b plus c. Here we are getting a is equals to b plus c. Now our value is a is equals to minus b plus. So put it here like just as we put in b and c. So we are going to put it here, and a is equals to a by 2, a by what I can say, a by b plus c is equals to minus of b plus c upon b plus c. It will get cancelled and we get to get value of minus 1. So there are two possible solutions. If it is greater than 1, if it's greater than 0, then only possible solution is 1 by 2. But if they are less than 0, so there are two possible options, 1 by 2 and minus 1. So sometimes they do not give these conditions as what are they. If they are saying these three are a, b, c are positive number, means they are 0, then this is the answer. If they do not provide anything, then we are going to do with 1 by 2. But if they provide they are negative number, or we can't say if they are less than 0, then we have two values, 1 by 2 and minus 1. This is our question number 16. Now question number 17. Two numbers are in the ratio like n1 and n2. Let's suppose there are two numbers which are in ratio 29 ratio 20. On decreasing each of them by 210, on decreasing each of them by 210, we got the ratio as 17 ratio 11. This is the initial ratio, this is the final ratio. The difference between number is, so we have to find the n1 minus n2. The difference here, the difference. Now the thing is that कि यहाँ का डिफरेंस भी सेम होगा, यहाँ का भी डिफरेंस सेम होगा, क्योंकि हमने सेम चीजें ही माइनस करी हैं. अगर ये ऐसे इसको ले ले, ये 220 है, इसको लेकर 230 है, ये 220 है, 210 दोनों में 230 और 220 में 10 का वैल्यू होती है, 10 का डिफरेंस है. तो अगर इसमें से 210 माइनस करेंगे तो ये 20 बचेगा, ये 10 बचेगा, फिर भी 10 का डिफरेंस रहेगा, तो डिफरेंस चेंज नहीं होने वाला अपना. So how we are going to do? So yeah, the difference will be same. Here is the difference is 9 units, and there we have difference of 6 units. Firstly, we need to equate the differences. How we going to differentiate? Take LCM of 9 and 6. It will be 18. 9 और 6 का LCM होता है 18. So multiply it by 2 and multiply it by 3. We will get the new ratios like 29. We विचारी थे 18 no 58 ratio 40 minus something like we have ki minus 2009. We are more focused on ratios. We are not concerned about the particular values because particular values are known. So 6
ये यूनिट है 64 नहीं है, ये 94 नहीं है, ये u है, you can say 6 units 9 units or you can write it as 9x or 6x, it doesn't matter। 17 दी है, 7 की 51, 11 की 33। now we can see कि ਇਹਦੇ ਚ डिफरेंस हैगा 18 ਦਾ, ਇਹਦੇ ਚ भी डिफरेंस हैगा 18 यूनिट्स का। एंड वी कैन से कि यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 7 यूनिट का, इसमें 7 यूनिट माइनस हुई है और इसमें भी 7 यूनिट माइनस हुई है। नाउ वी कैन सी प्रॉपर्ली कि ये 7 यूनिट है और इस 7 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 210, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी 30। अगर 7 यूनिट की वैल्यू 210 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 30, तो अपने को चाहिए ये डिफरेंस, वो है 18 यूनिट। 18 यूनिट की वैल्यू होगी 18 इंटू 3 30, सो 30 आती है 24, 54 540, the difference will be 540। yeah, this is the correct answer। I have done it in 2 ways, so what's the alternate method? This is the easy one। firstly I had done with a difficult method, so it's a very long calculations। You can do it alternately, you can do it like ये है ना 29, write it as 29 ratio 20, this is number 1, this is number 2, this is minus 210, this is minus 210, 17 ratio 11, so write it as x, so 29 x minus 210 divided by 20x minus 2010 is equals to 17 by 11। This is the most traditional method we use, any beginner will try to use this method। it is a very long method, you have to calculate, you have to cross multiply it, and after cross multiply you will get the value of x, and here you will going to get the value of x as 60। after solving this you will get the value of x as 60। now we need to find the difference, here is the difference of 9x, 29x minus x, so x की वैल्यू 60 है तो 9x की वैल्यू क्या होगी, 9x will be 540। the same answer we get here, the same will be going to get here। I skipped the calculation because I have already had done it, but when you are doing this by this method it will be taking too much time, it will take too much calculations to complete, so this is the most easy method, you do not need to do too much calculation, and it is more feasible while doing in CAT examination, because we do not have time to do calculation, we can do questions, we can get answer correctly, but it will going to take 3 minutes and it will only going to take hardly 40 to 50 seconds। so CAT is not about doing questions, CAT is about doing more question in less time। the same mistake I had done in 2024, I know ki what's the answer, how to do the questions, but I don't know the short tricks। I only done I guess 6 to 7 questions in 2024 quant questions, but when I came home and checked my question paper, I just found ki I can do 10 questions easily, so 10 questions is 95%, but I didn't able to get it। with that 6 question I also made one mistake also, so I got one incorrect also। so these are our 2 questions। now there will be third question। firstly I have to clean it। यार हमारे जो कैट में एग्जाम होते हैं ना, कैट का एग्जाम हमें जोर नहीं लगाना है। CAT exam is not about putting too much power in one thing। CAT is the management exam, so they are checking your management skills, how you are going to manage your paper। it's not about the solving the paper, you do not need to solve all the paper। if you can get correctly 55% you will get 100%। this is the stats are saying, as stats are saying their data, 50% you will get 99%, and if you are doing 55% correctly then you are going to get 100%। so 50%, there will be 66 questions, you only need 33 correct,
but 33 100% correct. So for that we have to do at least 40 questions, so we can get 34 35 correct and 5 are incorrect, so we can able to get the 33 correct answers. 33 will be 9900 marks. It is 100 marks will give you around 99% and more than 99% I guess. In quant you only need 12 correct for 99 and 13 for 99.9. The only difference is there. So the next question is, the total number of men, women and children working in a factory is 40. Men plus women plus children is equals to 40. I guess you can see what I am writing. They earn rupees 13,430, 13,430 in total in a day. These 40 people earn 13,430 rupees in a day. If total wages of men, women and children are in the ratio, total wages ratio is 35 ratio 26 ratio 18, man, woman, children, and wages of man, woman and child is 7 ratio 3 ratio 6, and there is another ratio which is according to the person, wage per person is 7 ratio 13 ratio 6. So then what is the daily wage earned by the child? So we need to find the daily wage. दिस इज वेरी ट्रिकी कि यार पहले हमें दिया हुआ टोटल वेज का रेशियो, फिर हमें दे रखा है एक और रेशियो जिसमें कुछ नहीं ज्यादा बताया उन्होंने, तो यही हमें चीज पर पकड़ दी है कि ये वेज पर पर्सन का है और ये टोटल वेज का रेशियो है. फॉर एग्जांपल कि 100 रुपए हैं, 100 रुपए हैं, उसमें से मतलब 35 इसको मिल रहे हैं, 26 इसको मिल रहे हैं, 18 इसको मिल रहे हैं. ये जितने भी बच्चे हैं उनको 18 मिलेंगे, जितने भी औरतें उनको 26 मिलेंगे, जितने भी बंदे हैं उनको 35 मिलेंगे. बट एक बंदे को 7 रुपए मिलते हैं, एक औरत को 13 रुपए मिलते हैं, एक बच्चे को मिलते हैं 6 रुपए. ये नीचे वाले रेशियो का है कि एक बच्चे को 6 रुपए मिलेंगे, जितने बच्चे हैं उनको 18 रुपए मिल रहे हैं. ये है. एक औरत को 13 रुपए मिलेंगे और जितनी औरतें वो 26 रुपए लेके जा रही हैं. इट्स नॉट लाइक 26 रुपए हैं, बट दे आर इन रेशियो टू अंडरस्टैंड दिस कि एक बंदा 7 रुपए कमा रहा है, एक औरत 13 रुपए कमा रही है, एक बच्चा 6 रुपए कमा रहा है, और जितना ये पैसा है उसका 35 रेशियो है ना, जो वो सारे मैन लेके जा रहे हैं, 26 रेशियो में औरतें लेके जा रही हैं और 18 में चिल्ड्रन लेके जा रहे हैं. सो वी नीड टू फाइंड द व्हाट इज द डेली वेज अर्न्ड बाय चाइल्ड. तो डेली वेज ऑफ बाय चाइल्ड, सिंगल चाइल्ड, सो इसकी वैल्यू में हमें एक की निकालनी है. सो फर्स्टली वी नीड टू टोटल वेज डिवाइडेड बाय wage per person, we will get the person. How many person in the company? Person we will get, person. If we divide this, we will get 5. We can multiply and we can divide ratios. This is the most important thing. We can't add, we can't subtract our ratios. We only can multiply or divide it. 13 26 2 and 3. These are the number of person. If there are 5 male, then 2 female and 3 children will be there. So these this is the ratio, and we have already given ki man, woman and child is equals to 40, and this is total as 10. They are saying 10 units, but they are saying it's 40. So 1 unit की value होगी 4. If 1 unit is value is 4, then 3 की होगी 12. There is 12 children. 12 children are there. इसको करेंगे 20 men and 8 women and 12 child.
So now we need to find the total wage. What is the daily wage earned by child? Daily wage earned by child will be 12 children. Total wage earned by children is 18. And the thing is that we have to multiply it by we need to find this ना, हमें इसको भी तो यूज करना है. सो टोटल वेज ये क्या है, तो इसका सम है 35 प्लस 26 प्लस 18 इज इक्वल्स टू 79. दिस इज 79. x ले लो, इसकी वैल्यू है 13,430. तो x की वैल्यू क्या होगी, कट एक पे जाएगा एंड दिस विल गेट 29 एंड 170. ओके 170 नहीं, या 170, ये 170 पे कट होगा. अगर a की वैल्यू 170 है तो 18 की होगी 18 इंटू 170. ये 12 चिल्ड्रन का ये पैसा है. दिस इज अ मनी दे आर मेकिंग इन अ डे. सो एक चाइल्ड का कितना होगा, डिवाइडेड बाय दिस विल बी 2 and 3 and 2 will also get cancelled and 8 एक 5 85 3 से 8 ये 24 255. I guess this is the rupees. Yeah, one child earn 255 rupees in a day. Yeah, this is the correct. Now if you want to write it, you can write it down because I have closed this limit, so I have to clean it firstly, then I will going to start our next question. Firstly I need to make a line so I do not cross that line. I'm going to do two questions in one row. So our next question is 16, 17. This is our fourth question. No? First, second, we have done third, and now it's our fourth. Means question number 19. This is question number 19. Yeah. Two numbers are such that the ratio of their difference, sum and product is in the ratio of 1:7:24. There are two numbers. Let's suppose A and B are the two numbers, and the ratio of their difference, A minus B, to the ratio of their sum, A plus B, ratio to the product of their AB is 1:7:24. The product of the two numbers, we have to find the AB. What is the value of AB? Now, can we do our guesswork? Yeah, we can do. But our take 4, 3, we can do A is equals to 4 and B is equals to 3. Its value is 3. For 4 ये 12. We can't able to get 24. So 8 and 6. Now this is not how we are going to do. So let's suppose this is exactly we can do. A minus B is equals to, let's suppose it's x and x is x. A plus B is equal to 7x. Solve this equation, so we get add it. 2a is equals to 8x and A will get 4x. Its value is 4x and B will be going to 3x. But here is a condition. We have to find the value of 24x. And how I have done this? Yeah,
we have value of A and B. So A dot B, the product of AB is equals to 4x into 3x, which is equals to 12x square. But this 12x square is equals to 24x. 12x square is equals to 24x. So x will get the value of 2. Now we have value of 2. So what is the value of AB? So AB value will be 24x, which is equals to 24 into 2, which is equals to 48. This is our answer. Now let me explain it again. There are two numbers A and B. Its difference, its sum and its product has in ratio. Its ratio is 1 ratio 7 ratio 24. We need to find the exact value of AB. What the product of A and B. So firstly we see कि A minus B और A plus B दे रखा है. So we can find the value of A and B. By guess you can see कि हाँ 4 और 3 का ही बन रहा है combination. 4 और 3 का बस 7 होता है और 4 minus 3 1 होता है. But for a mathematically we can do it कि A minus B is equal to x और A plus B is equal to 7x. तो इससे A की वैल्यू आ जाएगी 4x, B की वैल्यू आ जाएगी 3x. So यहाँ से A और B की वैल्यू जो निकाली है, इससे AB की वैल्यू क्या आएगी? A डॉट B की वैल्यू आएगी 12x स्क्वायर. हमारे जो 4x और 3x निकाले हैं उससे वैल्यू आ रही है 12x स्क्वायर, बट उसकी वैल्यू दे रखी है 24x. तो यहाँ से हमें इनको इक्वेट करना पड़ेगा जिससे हमारे को x की वैल्यू मिलेगी. As we get the value of x in the ratio, the value of x is the most important thing, because by putting the value of x we can get the exact answer what we are looking for. So by multiplying the value of x with 24, we will get the 48 as answer. It is the exact answer if A and B is 48. So we can find the value of AB also. A is 4x. So A's value is 8 and B's value is, or I can say 6. Yep. So when we do it, A minus B is 2 and this A plus B is equals to 14 and it's 48. This is the value of exact values 2 ratio 14 ratio 48, and they are in the ratio 1 ratio 7 ratio 24. Yep. Now question number 20. The cost of an article which is composed of raw material and the wages. Cost price जो है cost है वो है raw material. Raw material we can write raw material is R plus wage. जो हमारा cost है मतलब कि किसी पार्टिकल की cost है 10 रुपए, तो उस 10 रुपए की cost कैसे निकाली है? उसकी cost ऐसे निकाली कि जो raw material का पैसा लगा है और wages जो हमने उनको पे करा जिन्होंने बनाया, उन दोनों का सम ही उसका cost price है. क्योंकि हमें उतनी cost लग रही है, raw material और labor की तो cost लगती है हमारे, उसी को cost price कहते हैं. The cost of an article which is composed of raw material and wages was 3 times the value of raw material used. और इस CP को इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3R. This is the condition कि CP जो R plus W है उसको 3R, कि R plus W मतलब wages का वैल्यू क्या है 2R. तो ये है R ratio W जो है 1 ratio 2 में है. एक CP अगर बना रहे हैं तो अगर R रॉ मटेरियल पे 10 रुपए लग रहे हैं तो वेजेस पे हमारे 20 रुपए लगेंगे और हमारी कॉस्ट प्राइस बढ़ेगी 30 रुपए. इसके अकॉर्डिंग यूज द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इंक्रीज्ड. अब रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हुई है इन द रेशियो ऑफ 3 रेशियो 7, एंड वेजेस की जो वो भी इंक्रीज हुई हैं इन द रेशियो 4 रेशियो 9. इनिशियल ये थी, फाइनल ये हो गई हमारी. फाइंड द प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल ऑफ इट्स ओरिजिनल कॉस्ट इफ इट्स ओरिजिनल कॉस्ट इज 18. इफ दिस इज 18 rupees, what will be the present cost after increasing the value of raw material and wages? Yeah, this is a very good question for CAT kind of paper.
₹18. So raw material value will be 18 by 3 and raw will be 6 rupees. If raw is 6 rupees, wages will be rupees of 12. तो हमारे 6 रुपए के रॉ मटेरियल है और 12 रुपए की हमारे पे वेज लग रही है। अब ये 6 रुपए पहले 3 थे, उस 3 की वैल्यू 6 है, इसकी वैल्यू 6 है, तो एक की वैल्यू होगी 2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 14 रुपए। ऑब्वियसली इसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस 4 की वैल्यू है 12, 4 की वैल्यू 12 कैसे, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करो। अगर इसको 3 के साथ करें तो इसको भी 3 के साथ मल्टीप्लाई, 9 3 27। अब रॉ मटेरियल की वैल्यू होगी 14, वेजेस की वैल्यू होगी 27। सो सीपी जो होगा नया वो होगा 14 प्लस 27 विच इज इक्वल टू 37, 37 4 41 रुपए। सो नया सीपी होगा 41 रुपए। भाई 42 से ही वैसे तो यहाँ पर 41 बन गया और वही सही है हमारा 41 ही। 41 इज द करेक्ट आंसर। द न्यू सीपी, ये है न्यू, ये थी ओरिजिनल। दिस कंडीशन इज ऑल अबाउट द ओरिजिनल। When I do this question, I got confused with this statement कि 3R, यहाँ पे 3R है, यहाँ पे भी 3R होना चाहिए था। मुझे ऐसा लगा क्यों, क्योंकि मैंने उसको क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ा कि वो 3R सिर्फ ओरिजिनल के लिए था, वो न्यू के लिए ये कंडीशन कोई मतलब कि यूनिवर्सल कंडीशन नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। ये फर्स्ट कंडीशन थी कि जब ओरिजिनल में ऐसे था, जब 18 रुपए थे तब ऐसा कंडीशन था कि रो जो है वो 3 टाइम था कॉस्ट प्राइस के। बट दिस इज नॉट द सेम सिनेरियो फॉर द न्यू क्वेश्चन बिकॉज rho is 14 and 14 3 is equals to 42 and it's not equals to CP, it's more than CP. So this is a very good question. Now question number 21. This is also a very good question. Actually today I only going to give the good questions, yeah, which are very important. If you do these kind of questions, you will going to get a gist of ratio and proportion. And it's not like कि मैं 10-20 क्वेश्चन ही कराऊंगा। I have a target of, I have 100 questions for ratios and proportion, and I have target कि मैं उस 100 questions को upload करूँ इस पे for only for ratio and proportion. So if you are doing 100 question on each topic and you are doing multiple 15 and 16 topics, you are preparing in 1600 questions and you don't need to go too much कि यार मुझे ये भी करना है वो भी करना है। no, you can't crack CAT without retaining it. What I can say कि मैंने पढ़ बहुत लिया, 10 क्वेश्चन यहाँ से कर लिए। It's not about कि 10 करें कि 100 करें। The thing, only thing is कि यार तुम लोग वो 10 में से 9 क्वेश्चन तुम्हें याद है ना, तुम्हें कैसे करने थे। अब मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ और मुझे इसके सोल्यूशन देखने पड़ रहे हैं क्योंकि मैं रिटेन नहीं कर रहा, मैंने इसको अपने आप कराया था, मैंने सोल्यूशन देख के करा जैसे भी करा है। अब दूसरी बार कर रहा हूँ तो मैं भूल रहा हूँ, बट ऐसे कि अगर मैंने इसको दूसरी बार कर लिया तो हाँ इसकी कुछ रिटेन मेरे पास होगी। अब when I do it third time it will be more easy for me to grab these things and to learn the core concept. The question is not going to repeat. The question is not going to repeat in academic examination. The things will get to repeat is the concept, the inner idea, the main idea you have used in the question. These things will going to repeat in the CAT examination. So get a gist of that inner idea, the main idea, how the things are doing, how we are actually solving the questions. That's the most important thing. So now let's go to our next question, question number 21. A year ago, Kapil was 7 times old as Dev. So एक दो दोस्त हैं कपिल और देव। कपिल जो है अगर देव x है, x नहीं इसको लेते हैं 1 है, तो ये 7 है, मतलब अगर वो 1 साल का है तो वो 7 साल का है। B years from now, ये प्रेजेंट हो जाएगा, ये प्रेजेंट से 7 साल पहले की कंडीशन, A years before,
प्रेजेंट से ए ईयर बिफोर, अब ये है प्रेजेंट से बी ईयर के बाद में, मतलब प्लस बी, इसको लिख सकते हैं माइनस ए, माइनस ए ईयर्स, मतलब ए को अगर 5 साल वैल्यू लें तो आज से 5 साल पहले हमारा रेशियो था 7:1, अब बी को ले लो 8 ले लो, जैसे कि आज से 8 साल बाद जो रेशियो है हमारा, कपिल विल बी 3 टाइम एज ओल्ड, कपिल जो है 3 गुना है 1 से, देव से। इफ ए रेशियो बी, सो दिस ईयर्स, जो ए एंड बी है इसका रेशियो दे रखा है 1:2, मतलब अगर ये 5 साल है तो ये 10 साल है, अगर ये 10 है तो ये 20 है, सो दिस इज द रेशियो। नाउ यार ये जो एज वाले क्वेश्चन होते हैं इनमें एक चीज इंपॉर्टेंट होती है कि अगर मैं 10 का हूं, वो अगर मैं 7 का हूं, वो 1 का है, आज से 5 साल बाद मैं हो जाऊंगा 12 का, वो हो जाएगा 6 का। एक थिंग कॉमन रहेगी कि हमारा जो डिफरेंस है ना वो कभी चेंज नहीं होगा। मैं 10 का हूं, मेरा भाई 15 का है, आज से 5 साल बाद वो 20 का हो जाएगा, मैं 15 का हो जाऊंगा। एक चीज हमेशा कॉमन रहेगी कि जो हमारा ये डिफरेंस है ना, ये कभी नहीं चेंज होगा। तो यहाँ पे डिफरेंस है 6 का, यहाँ पे डिफरेंस है 2 का, भाई डिफरेंस गलत आ रहा है तो हमें डिफरेंस सेम करना पड़ेगा। अगर डिफरेंस सही नहीं आ रहा तो हमें डिफरेंस सेम करना है। डिफरेंस सेम कैसे करेंगे? 2 और 6 का रेशियो, और 2 और 6 का एलसीएम क्या होता है? 6, so we have to make it 6, multiply it with 3. If we multiply it with 3, the next ratio will be 9:3, and this ratio is, I should write it down, A ratio B is 1:2, as already given, so it will be 7:1, and this is 9:3. अब है इसमें भी डिफरेंस 6 का है, इसमें भी डिफरेंस 6 का है, और हमने इसमें जो इसका ये जो वैल्यू है ये है a प्लस बी की, क्योंकि आज से 5 साल पहले, आज से 1 साल पहले और आज से 20 साल बाद, उसके बाद ये कंडीशन बनेगी ये वाली कि जो इसमें डिफरेंस है और a प्लस बी ईयर्स का है। फॉर मोर प्रिसाइजली आई कैन से ये ईयर्स है। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है, देन हाउ मेनी ईयर्स फ्रॉम नाउ will couple be twice as old as Dev? तो आज से let's suppose कि आज ये t years का है, आज ये t years है, today year t, तो ये हो जाएगा t minus a, ये हो जाएगा t plus b। तो इस t से कितने साल बाद जो रेशियो है वो रेशियो चला जाएगा 2:1 में, मतलब आज से कितने साल बाद ये 2:1 हो जाएगा। सेम थिंग कि जो गैप है वो कभी चेंज नहीं होगा, तो इसका जो गैप की वैल्यू है 1, तो इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इफ यू मल्टीप्लाई इट विद 6 इट विल बी 12:6। नाउ 2 और 3, अब इसके बाद मैं खुद भूल रहा हूँ, तो मैं खुद भी चेक करूँगा, क्यों? क्योंकि मुझे भी अब समझ आ रहा है कि मैं काफ़ी चीज़ें भूल चुका हूँ। सो हाउ आई हैव डन दिस, आई हैव टू सी अगेन। सो इसमें जो है 2 का प्लस हुआ है, and that 2 is equals to a plus b, this 2 is equals to a plus b, we have already done it कि a plus b की वैल्यू है 2, और a, हाँ तो इससे पता लग गया ना, a अगर 1 है तो b जो है 2a लिख सकते हैं, या
क्यों? क्योंकि अगर A रेशियो B अगर इसको करेंगे तो ये 1:2 ही आएगा ना। अगर A को A लेते हैं और B को 2A लेते हैं तो यहाँ से हम कर सकते हैं कि जो +2 की वैल्यू है इज इक्वल्स टू 3A, A is equals to 2/3. Why I am doing it in A? Because the option that the question has given, it has the value in A, so I have to convert all the equation in A. We can't specifically find the value of A and B क्या है। तो हमने A की वैल्यू निकाल ली 2/3 और यहाँ से यहाँ की वैल्यू है 3 यूनिट। तो इस 3 यूनिट को हम कैसे लिखेंगे? 2 यूनिट की वैल्यू है 3A, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 3/2। देखो जी, 2 यूनिट की वैल्यू है 3A, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 3/2A फ्रॉम दिस इक्वेशन है। तो 1 यूनिट की वैल्यू, तो यहाँ पे हो गया 3 यूनिट्स, तो 3 यूनिट्स की वैल्यू होगी 3 into 3/2A which is equals to 9/2A, 4.5A. This is the correct answer which is given in the options. So यहाँ से after adding T plus 4.5A years, the ratio will become 2:1. I guess you got it. Let me explain it again कि आज से A साल पहले दो दोस्तों का रेशियो है 7:1 और आज से 20 साल बाद उनका रेशियो 3:1 हो गया। उन्होंने कहा है कि जो A और B है इनका रेशियो 1:2, A और B 1:2 में है। और उनको क्वेश्चन है कि आज ये जो T है आज से कितने साल बाद ये रेशियो 2:1 में बदल जाएगा। सो इन एज क्वेश्चंस में जो जिसमें एज यूज होती है उसमें कभी भी डिफरेंस चेंज नहीं होता। एज हो गया जहाँ हमने वो माइनस करा था स्टफ, उनमें जब कुछ डिफरेंस कर रहे हो तुम चीजों में इक्वल डिफरेंस कर रहे हो तो वहां पे कभी कुछ उनका जो आपस का नंबर्स का डिफरेंस है वो कभी चेंज नहीं होता। तो एज कभी भी चेंज नहीं होगी बीच में। तो इसकी वैल्यू 6 है, इसकी वैल्यू 2 है, तो इसको 6 करेंगे तो इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 6 और 2 का एलसीएम होता है 6। ऐसे हम इसको भी करेंगे, इसकी वैल्यू 1 है, 6 का डिफरेंस है, इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12:6 हो जाएगा। अब नाउ न्यू रेशियो इज 7:1, 9:3 एंड 12:6। ये जा रहा है 1 से 3। यू कैन सी इट हियर कि 7 से 9 की वैल्यू है 2, मतलब 2 यूनिट का फर्क आ रहा है और इस 2 यूनिट की वैल्यू A प्लस B। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी A प्लस B/2। सो A प्लस B की वैल्यू क्या है? अगर A रेशियो B 1:2 है तो A की वैल्यू A लेते हैं, B की वैल्यू 2A लेते हैं। तो इससे हम लेट करने की जरूरत भी नहीं है, मतलब लेट तो ऑब्वियसली हो जाएगा क्योंकि ये सही लेटिंग है। A को 1 ले लो, B को 2 ले लो, यही है। तो उसके साथ A भी तुम ऐड कर सकते हो। तो यहां से हमें A की वैल्यू मिलेगी 2/3, सो जिसकी हमें ज्यादा जरूरत है नहीं क्योंकि ये हमने गलत कर दिया। A को 2/3 कभी नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती कर दी। ये यूनिट है, 2 यूनिट/3 होगा, नॉट दिस इज नॉट अ कॉमन 2। ये 2 यूनिट्स हैं, दो एग्जैक्ट 2 वैल्यू नहीं है। तो A की वैल्यू कभी सही प्रॉपर आएगी नहीं, so we don't need to write the value of A। तो 2 यूनिट की वैल्यू 3A आ गई तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 3/2A और यहां से यहां का जो जंप है वो 3 यूनिट का है, तो 3 यूनिट की वैल्यू होगी 4.5A। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 21 and let me erase it। कभी कभी यार मुझे भी सारा कुछ नहीं आता, मैं खुद ही इन चीजों को समझ रहा हूँ। मैंने भी ये क्वेश्चन आज से 2-3 दिन पहले ही करे हैं और भाई भूल जाते हैं। सच्ची बात है, कोई यहाँ पे चैंपियन नहीं बैठा जिसको सब कुछ आता है। सब भाई रट्टेबाज है, सब देख देख के सीखते हैं बारी बारी। जो तुम्हारे टीचर बैठे हैं वो भी, उनको भी सब कुछ नहीं आता भाई। मल्टीपल रिवीजन है उनकी उन क्वेश्चंस के ऊपर,
तो जाके वो ग्रिप बनी है। द सेम थिंग विल बी गोइंग द LRDI। LRDI को कोई गैस नहीं कर सकता क्या है, बट द वन थिंग यू कैन गैस कि हाँ तुम्हारा न्यूरल नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग बन जाए कि यूज तुम्हें दिखने लग जाए क्वेश्चन पढ़ते कि यार कैसे होगा ये सिस्टम। ये पहले मुझे नहीं समझ आ रहा था यार कैसे होता है, पर व्हेन आई स्टार्ट डूइंग दिस, अभी मैं मास्टर नहीं कर उस चीज को कर पाया, बट हाँ अब थोड़ा थोड़ा दिखने लग गया है कि हाँ यार कैसा टेबल बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, टेबल बनाना भी है कि क्या बनाना है। बहुत बेसिक क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, कोई एडवांस लेवल नहीं कर रहा, बट हाँ दीज थिंग्स स्टार्ट गिविंग कॉन्फिडेंस। सो कॉन्फिडेंस लाना जरूरी है LRDA में, और भाई रेगुलर प्रैक्टिस तो चाहिए ही चाहिए। LRDA सब्जेक्ट है जिसको ऊपर सबसे ज्यादा काम करना है। डू प्रैक्टिस LRDI डेली, क्योंकि ये भाई एक दिन में पढ़ने वाली चीज है, 2 महीनों में LRDI तैयार है, तो 2 महीनों में क्वांट तैयार होती है, 3 महीनों में भी आती तैयार होती है, पर LRDI तैयार करने के लिए कम से कम 7-8 महीने चाहिए, और रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए LRDI की। सो क्वेश्चन नंबर 22। So there are 3 friends. Let's suppose K, L and M. Kirti, Leela and Mansi. We will going to say it like K, L and M. Plan to get together. 3 दोस्त हैं, उन्होंने अपना गेट टुगेदर का सोचा। सो कीर्ति ने 4 मैंगो लेके आई, लीला 6 मैंगो लेके आई। Since Mansi did not bring any mango, she contributed 60 rupees. भाई वो कोई पैसे नहीं लेकर आई, तो उसने 60 कोई मैंगो लेके तो 60 रुपए डाल दिए। हाउ मेनी रुपीज शुड कीर्ति एंड लीला रिस्पेक्टिवली गेट assuming each of the 3 consume an equal portion of the mango। सो भाई ये 60 को इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और डिस्ट्रीब्यूट ऐसे करना है कि जो ये मैंगो है 10 मैंगो है, ये तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। सो टोटल मैंगो कितने हैं? टोटल मैंगो इज 10। बंदे कितने हैं, पर्सन कितने हैं? 3। सो ईच पर्सन विल गेट 10/3 मैंगो। सो कीर्ति रेशियो, लीला रेशियो, मानसी 4 मैंगो, 6 मैंगो, ₹60। ईच विल गेट 10/3 मैंगो। सो इसने 10/3 मैंगो ले लिए, जो इसके 10/3 हैं, जो बचे हैं वो ये कंट्रीब्यूट करेगी इसको। सो 4 माइनस 10/3 मैंगो, तो 4 के 12 इज इक्वल टू 2/3 मैंगो। इसने अपने 10/3 ले लिए, तो जो 2/3 है ये जाएगा इसको, 2/3 मैंगो। इसने भी अपने 10/3 ले लिए, तो इसको करेंगे माइनस 6 माइनस 10/3 m। सो 6 × 18 और ये हो जाएगा 8/3 मैंगो। शी विल गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू मानसी एंड एडिशन इज 10/3। भाई इसने भी 10/3 ले लिए, इसने भी 10/3 और इसने भी 10/3, तो तीनों की सही है। अब है पैसा, बात है पैसे की, तो पैसे की कंट्रीब्यूशन वैसे ही होगी जैसे उन्होंने इसको कंट्रीब्यूट करा। 2/3 रेशियो 8/3, 3 से 3 कैंसल, 1/4। तो पैसे की डिवाइड होगी 1/4, कीर्ति रेशियो लीला। तो टोटल 5 है, और 5x की वैल्यू दे रखी है 60 रुपए, तो x की वैल्यू होगी 12 रुपए। तो कीर्ति विल गोइंग टू गेट 12 रुपीज एंड लीला विल गेट ₹48। This is the answer. First time when I do this, I got it totally incorrect. तो भाई मेरा तो कुछ अलग ही आंसर आ रहा है, जैसे 20-30, क्योंकि मेरा ये लॉजिक नहीं मैं लगा रहा था कि भाई सबको इक्वल मिलने हैं, बट पैसा जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, वो उतना ही डिस्ट्रीब्यूट होगा जितना उस बंदे ने दिया है। अगर मेरे पास 5 है और मैं सिर्फ 3 दे रहा हूँ, तो मेरा 3 का काउंट होगा, और एक बंदा जिसके पास 10 है और वो 8 दे रहा है, तो मैंने 3 दिए और 8 दिए, तो भाई जो पैसा बटेगा वो भी 3 और 8 के रेशियो में बटेगा, वो अलग अलग रेशियो में नहीं बटने वाला। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 22। नाउ द क्वेश्चन नंबर 23।
Yeah, I forgot two questions which are very important. Question number 23. एज का ही फिर क्वेश्चन है. 4 years ago, 4 साल पहले, the ratio of ages of A and B लोग को ये प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट ये चल रही है T माइनस 4 साल पहले जो उनका रेशियो था वो 13:9 था. एंड 8 year hence it would be 4:3. और इससे 8 साल बाद T plus 8, this will get 4:3. The difference of their present age is, जो उनकी प्रेजेंट एज है वो निकालनी है और उसका डिफरेंस निकालना है. तो प्रेजेंट एज का डिफरेंस हुआ से 4 साल पहले का डिफरेंस हो चाहे 8 साल बाद का डिफरेंस हो, डिफरेंस भाई सेम रहता है हर बार. तो भाई अगर सेम है डिफरेंस तो वटा वैल्यू क्या है, तो 4 है यूनिट. और यहाँ पे डिफरेंस है 1 का, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है. तो भाई डिफरेंस नहीं अलग हो सके. सो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 4 to make it equal. So A ratio B will be 13:9 and this is 16:12. So भाई इसका डिफरेंस आया +3 का और इधर से भी डिफरेंस आया +3 का. बट इस +3 की वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक की, इसकी वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक की. जो 4 पहले 8 बाद, 4 + 8 = 12 years. This 3 is equals to 12 years. 1 will equals to 4 years. 1 is equals to 4 year. And now we need to find the difference. The difference है 4 का. Yep. तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी? प्रेजेंट एज विल बी, अरे यार 4 का डिफरेंस है, 4 के साथ 4 मल्टीप्लाई कर 16 ईयर का उसका डिफरेंस आएगा. प्रेजेंट देखने की जरूरत नहीं है. We don't need to find the present value, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे आंसर फिर भी सेम आना पड़ेगा. पीछे जाना पड़ेगा. क्यों जाना भाई? कैट है, बोर्ड का पेपर तो है नहीं है, जितनी ज्यादा शीटें भरेंगे उतने ज्यादा नंबर बनेंगे. कैट है भाई, उनको चाहिए एग्जैक्ट आंसर. एग्जैक्ट आंसर क्या है कि हमने इस डिफरेंस की वैल्यू है 3 और डिफरेंस की वैल्यू है 12 साल, दोनों डिफरेंस है तो एक की वैल्यू 4 ईयर होगी. यहाँ से यूनिट का डिफरेंस कितना है? 4. एक की वैल्यू 4 है तो 4 की वैल्यू क्या होगी? 16 ईयर. दैट्स इट. सिंपल क्वेश्चन करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 24, ये भी एज वाला क्वेश्चन है. मनोज प्रेजेंट एज इज ट्वाइस द एज ऑफ धीरज 1 year ago. सोचो भाई ये है प्रेजेंट ईयर, ये T माइनस ईयर और मनोज भाई हैं अपने और एक है धीरज भाई. तो 1 साल पहला मनोज की एज ट्वाइस थी. मनोज अगर धीरज अगर 1 है तो मनोज भाई 2 है, ट्वाइस है ना. व्हाट इज द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज? इफ the ratio of the sum of their present age to the difference of their present age is 19:5. भाई उनकी कोई प्रेजेंट एज आएगी. सोचो कि मनोज भाई आ गए 10 के, ये भाई आ गए अपने 9 के, तो उनका जो सम है 9 10 + 9 = 19 और जो उनका माइनस है 10 - 9 उनका रेशियो आ रहा है 19:5. तो सम रेशियो डिफरेंस ये 19:5. ये सम है इनकी प्रेजेंट एज का. जो ये प्रेजेंट एज है ये इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो नहीं है, ये प्रेजेंट एज से 1 साल पहले का रेशियो ये है. हाँ यार ये तो मुझे भी नहीं याद आ रहा कैसे कर सकते हैं. मनोज की प्रेजेंट एज अगर मान लिया अपने x है,
तो इसमें एक ही बंदा गया है, जो भाई जहाँ से मैंने सोल्यूशन देखा था उसने कुछ अलग तरीके से करा। उसने लेट करा था इसको ऐसे, उसने t की वैल्यू को ले लिया था ऐसे कि प्रेजेंट में भाई की एज चल रही है x, तो t माइनस 1 ईयर में उसकी एज होगी x माइनस 1। अगर प्रेजेंट 10 साल है तो 1 साल पहले वो 9 होगा। तो जो प्रेजेंट की एज है, हाँ क्वेश्चन ही गलत पढ़ दिया भाई। क्वेश्चन था मनोज प्रेजेंट एज इज ट्वाइस द एज ऑफ धीरज 1 ईयर अगो। जो धीरज की 1 साल पहले की एज थी उसका ट्वाइस है मनोज की प्रेजेंट एज। सो दिस इज द डिफरेंस। तो मैं लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा? तो इसका ट्वाइस है 2x माइनस 2। ये है मनोज भाई की एज इस वक्त, समझे? एंड द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज, हाँ, सो 2x माइनस 2 प्लस x रेशियो 2x minus 2 minus x is equals to 19/5। सिंपल यार, सिंपल। ये हो जाएगा 3x minus 2 x by x कटा x minus 2, cross multiply it and you will get the value of x as 7। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 7। So what we are asking? What is the sum of their present age? Sum of their present age मतलब 3x minus 2 की वैल्यू 7 दिए 21 minus 2 19 ये। सिंपल यार, ज्यादा मुश्किल नहीं था। बस वही है कि हमने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा। यही गलती हम करते हैं यार कैट में भी। कैट में भी मैंने ना 2-3 बार ये क्वेश्चन करके देख लिए कि मैं ना बहुत बार ये गलती कर रहा हूँ कि मैं प्रॉपरली क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहा, क्या स्टेटमेंट है। और ये सिली मिस्टेक ना हर बार कर रहा हूँ मैं भी अभी इस चीज को मास्टर नहीं कर पा रहा कि यार ये कैसे करें। मे बी बिकॉज ऑफ प्रेशर और मे बी इन हरी, यार हरी भी किसी चीज की नहीं होती, फिर भी ये समझ नहीं आ रहा कि एक छोटा सा वर्ड ना कैसे छोड़ देते हैं हर बार, एंड वो छोटा सा वर्ड मेक अ बिग डिफरेंस एवरी टाइम आई डू आई फाउंड दिस प्रॉब्लम। यार मैं कोई ना कोई किसी एक क्वेश्चन में छोटा सा वर्ड भूल जाता हूँ जिसके कारण भाई सारा क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही हिल जाती है। अब जैसे मैं ये कर रहा था, इसमें मेरी सेम गलती हुई मेरे से कि भाई मैंने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा कि मनोज की प्रेजेंट एज है वो है ट्वाइस धीरज की 1 साल पहले की जो एज थी, और मैं उसको ले रहा था कि भाई धीरज की 1 साल पहले की एज जो है वो हाफ है मनोज भाई की 1 साल पहले की एज। तो सारा क्वेश्चन ही बिगड़ गया। तो उससे हमें प्रेजेंट एज का एक कुछ ना पता चलेगा क्या करें प्रेजेंट एज का। सो दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन and I guess one of the most important question of our today's session, question number 25. The whole board is for our last question. A cow take 5 leaps for every 4 leap of a goat. एक काव है और एक भाई गोट है अपनी। सो देखो इसका ना यार कंसेप्ट समझना बड़ा जरूरी है। एक काव 5 लीप लेती है जितने टाइम में एक गोट 4 लीप लेती है जितने टाइम में। यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है, मतलब सोचो कि 5 मिनट में काव 5 लीप ले रही है फॉर एवरी, और जितने हमें 5 लीप ले रही है, जो बकरी है गोट है वो 4 लीप ले रही है। तो हियर टाइम इज कांस्टेंट। इन टाइम टी जो ये रेशियो है काव है 5 रेशियो 4, क्योंकि वो 5 ले रही है तो ये 4 ले रही है, अगर ये 10 ले रही है तो वो 8 ले रही है। नाउ द सेकंड स्टेटमेंट इज बट 3 लीप्स ऑफ अ गोट आर इक्वल टू द 4 लीप ऑफ अ काउ। अब जो ये वाली स्टेटमेंट है ये सबसे ट्रिकी बन जाती है, क्योंकि ना यार इसमें दिक्कत आती है। दिक्कत क्या है, इसमें कह रहे हैं 3 लीप ऑफ अ गोट, गोट की 3 लीप
जो कि इक्वल है काउ की 4 लीफ के, काउ लीफ 4। लेट्स सपोज कि एक लीफ में वो 3 मीटर चलती है, गोट 3 मीटर चलती है एक लीफ में, और ये चलती है 4 मीटर। लेट्स सपोज कि 4 मीटर चलती है। ऐसे ही इसको बनाएंगे। सॉरी मैं गलती से बना रहा हूँ इसको, जो है 3। यार ये कंसेप्ट ना बड़ा ट्रिकी सा है, इसकी ना छोटी सी गलती आ जाए ना तो सारा गेम खत्म हो जाती है। जो ये लीफ ऑफ गोट है और लीफ ऑफ काउ, it is not going to 3:4, it is going to be 4:3. And how this is going to be the 4:3? Let's suppose कि ये चलती है, गोट रहेगा ना 3, हाँ गोट लेते 3 लीफ, ये लेते हैं 4 लीफ, और ये दोनों इक्वल है। मतलब ये 3 लीफ में जितना डिस्टेंस कवर करेगी वो ही इसमें डिस्टेंस कवर करेगी, डिस्टेंस विल बी सेम। सो लेट्स सपोज कि गोट 4 मीटर करती है और काउ 3 मीटर करती है, क्योंकि अगर एक लीफ में 4 मीटर जाती है तो 3 लीफ में जाएगी 12 मीटर, और ये 3 मीटर एक लीफ में जाती है और इसकी चलते काउ की चलते 4 लीफ, तो ये हो जाएगी 12 मीटर। सो द लीफ ऑफ गोट रेशियो लीफ ऑफ काउ, मतलब जो लेंथ पर लीफ का जो रेशियो है, ये लीफ का नहीं मतलब लेंथ पर लीफ है, लेंथ पर लीफ, कि वो कितनी लेंथ कवर कर रही है एक लीफ में, कि एक लीफ में वो गोट जो है एक लीफ में 4 मीटर कर रही है, तो उसकी वैल्यू होगी जिसका रेशियो है 4:, हाँ उल्टा करेंगे ना, पहले काउ है इसका जो है 4 मल्टीप्लाइड 15:16, दिस इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस व्हेन यू मल्टीप्लाई इट। टाइम के साथ टाइम कटा जाएगा, मतलब ये टाइम है, ये भी टाइम है ना, लीप पर लीप है तो ये टाइम है, पर जहां पे आ जाता है टाइम के साथ है तो ये आ जाएगी डिस्टेंस, डिस्टेंस का रेशियो ये आ जाता है 15:16। एंड इन द कंसेप्ट ऑफ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, व्हेन टाइम इज कांस्टेंट speed is directly proportional to distance. How? Because speed is equals to distance upon time. तो टाइम अगर कांस्टेंट है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख लो। अगर टाइम कांस्टेंट है, टाइम इज इक्वल्स टू ले लेते हैं k जो कांस्टेंट है, तो d1 by s1 इज इक्वल्स टू d2 by s2 हो जाएगा। सो d1 by d2 is equals to s1 by s2. You will going to learn this concept in time speed distance, so I don't want to get very in depth in this concept कि distance का जो ratio होता है वही speed का ratio होता है when time is constant, when distance is constant the condition will be changed, तब speed का जो speed is inversely proportional to the time, as distance is constant, जैसे टाइम घटेगा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी तो ही टाइम घटेगा, अगर स्पीड कम हो रही है तो टाइम ऑब्वियसली बढ़ेगा क्योंकि डिस्टेंस तो वही सेम है। तो डिस्टेंस का रेशियो वही स्पीड का रेशियो है, स्पीड रेशियो विल बी 15:16 एंड दिस इज आवर आंसर व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। द क्वेश्चन यही था, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द काउ टू द डेट ऑफ द गोट, दिस इज आवर क्वेश्चन। यार ये ना इसकी एक अलग ही ट्रिक है, वैसे मैंने खुद अपने आप डेवलप करी है। In a question they are given कि a cow take 5 leaf for every
4 लीप ऑफ अ गोट, ये चीज भाई समझ आते हैं कि 5 लीप जब तक लेगी वो 4 लीप लेगी, तो सेम टाइम में ये 5 लीप ले रही है, 4 लीप ले रही है। बट जब ये बट आती है ना, 3 लीप ऑफ अ गोट आर इक्वल टू द 4 लीप ऑफ अ काउ, तो जो ये कहते हैं ना कि गोट 3 लीप ले रही है, गोट के नीचे 3 लिख दो, और काउ ले रही है भाई 4 लीप, 4 लिख दो। बट नाउ वी आर नॉट गोइंग टू डायरेक्टली मल्टीप्लाई इट क्रॉस, ये तो हो गया रटने वाली चीज। अगर कंसेप्चुअली समझना, कंसेप्चुअली यही समझ आएगी कि अगर हमें वो 4 लीप में जितना डिस्टेंस कवर कर रही है, वही उसने जो गोट 3 लीप में जितना डिस्टेंस कवर कर रही है, वही 4 लीप में काउ कर रही है। तो 4 और 3 का भाई ले लो एलसीएम, 4 और 3 का एलसीएम हो गया 12। तो 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाए, और 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाए। जो 3 के साथ जिसको मल्टीप्लाई करना है वो हो जाएगा 4 मीटर। तो मतलब गोट 1 लीप में 4 मीटर चल रही है, तो ही वो 12 मीटर करेगी 3 लीप में, और काउ जो है 1 लीप में 3 मीटर चल रही है, तो ही वो 4 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 12 मीटर होगी। दिस इज माय वे ऑफ थिंकिंग, कि जैसे मैंने अपना जो कंसेप्ट बनाया कि हाँ कैसे मैं इसको याद रखने वाला हूँ, वैसे मैं क्वेश्चन जब करूँगा मैं यही याद रखूँगा कि इसका रेशियो दे रखे है काउ और गोट का, जो वैल्यू दे रखी है गोट की, बट गोट टेक 3 लीप्स ऑफ अ गोट आर इक्वल टू द 4, भाई नीचे लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द एग्जैक्ट आंसर। बट आई एम नॉट रिकमेंडिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स, क्योंकि कैट वाले बहुत होशियार हैं, they will going to make a tricky question, they are not going to give us these simple kind of questions. So this is our today's lecture. We have done 10 questions. We don't have enough time कि मैं थोड़े और क्वेश्चन करा सकूं, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। आई डोंट नो कि कितने टाइम हो चुका है क्लास का, कितने टाइम की होगी क्लास, मुझे लगता है 40-50 मिनट की जो क्लास होगी, और इससे ज़्यादा लंबी क्लास का कोई फ़ायदा नहीं है। और मेरा मन था कि आज मैं LRDI शुरू करूं, बट tomorrow I will start my LRDI series also. There will be 2 days gap in quant and LRDI series, because LRDI is the most important thing. क्वांट को दूसरे नंबर पर रख सकते हो, LRDI की प्रैक्टिस को कभी भी दूसरे नंबर पर देख सकते हो। LRDI की सीरीज को तो भाई सीरियसली करना है। We can skip days for quant, but we can't skip for the days for LRDI, because LRDI is the thing which we have to do daily to get ace in LRDI. LRDI is all about the practice. How much practice you can do. If you can do more and more practice, you will start connecting things, you will start learning how the tables are making, how these things are connected. So the connection, the neural network you are going to make in these 8 months, you are doing different kind of LRDI questions. 600 हम टारगेट किया, मैं 500 सेट या 600 सेट जरूर लोड करूँ। तो जो न्यूरल नेटवर्क तुम 600 सेट्स में जो अलग क्राइटेरियाज तुम यूज करोगे, क्राइटेरियाज के अलग अलग तरीके से तुम देखोगे कि हाँ भाई कैसे हो रहा है। So that will be going to helpful in your CAT examination, because nobody knows what will come in LRDI. There is no specific syllabus. There are specific topics like games and tournament, Venn diagram. These are the 4 topics for LRDI, but we do not know what kind of questions they are going to give you. So the only thing we can do is making our neural networks. We have to increase our BDNF and we have to increase our intellectuality. यार लॉजिकल रीजनिंग के लिए तो भाई दिमाग चलाना पड़ेगा, और दिमाग को करना पड़ेगा तेज, और दिमाग तेज होगा भाई रेगुलर प्रैक्टिस से। तो वी हैव टू डू रेगुलर प्रैक्टिस, रिग्रेस प्रैक्टिस फॉर LRDI। एटलीस्ट ट्राई कि 3 से 4 सेट डेली करो भाई, पर डेली करो, बात ये है। डो नॉट स्किप डेज। इफ यू आर स्टार्ट स्किपिंग डेज, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू इन अ लॉन्ग रन। The same mistakes I have done in last year, I do not want to repeat these kind of mistakes, and I also want कि यार you guys do not repeat the same kind of mistakes what I have done. I don't know what kind of scores and how much scores I'm going to get in November. I'm just making this series. Maybe after 8th month or 9th month, I'm not be as what I can say कि यार उन्ना वर्दी नहीं हूँ इस सीजन का, मैं कहूँ हो सकता है मैं इस सीजन कहता बड़ा वर्दी हूँ, क्योंकि if I am getting 99.99, but what is my dream target
ਤਾਂ ਫਿਰ I will definitely going to make videos कि हाँ ये भाई तुसी किम कर सकते हो, but this is my way कि हाँ मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ. It's not about कि this is the exact correct way. I am experimenting uh, these tricks on myself. Firstly, let me see कि I am able to get a result from these kind of things. Then I can surely say to you कि हाँ you can also use these kind of tricks to study or to get good marks. So that's it. Let's close our session, our today's session, and we will meet tomorrow. And I will try कि tomorrow is Sunday, so I will try कि मैं अच्छे number of videos और अच्छे number of questions को upload करूँ, because I have to do my stuff also. Okay. Firstly, I need to make content. So कंटेंट बनाने से पहले कंटेंट भी होना जरूरी है, तो कंटेंट के ऊपर भी काम करना पड़ेगा. सो गुड नाइट, थैंक यू.